आज कौन सब्जेक्ट की क्विज थी भाई? अच्छा, स्क्रीन इज विजिबल. So today I am going to discuss about the last topic of the MIS. उसके बाद जितने भी कुछ और रेलिवेंट टॉपिक अगर कोई बचेंगे या कहीं लगेगा मुझे सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो वो फिर आगे आपसे डिस्कस किए जाएंगे एंड द रिवीजन वर्क विल बी स्टार्टेड. सो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट. Procurement. Can anyone tell me about the procurement? किसी को इसका मीनिंग पता है? प्रोक्योरमेंट का मतलब क्या समझते हैं प्रोक्योरमेंट से? Before going to discuss the technological effect and the definition, so first of all, if anyone of you comfortable, then tell me the definition about the procurement. कोई ट्राई करे? जो 24 रोल नंबर. हार्दिक तिवारी, आवाज कट के आ रही तुम्हारी. कोई और? मधुर, है क्या कह रहे हो? वासिक, वासिक, वासिक क्या करना बेटा? वासिक, और to a large extent you are saying correct, but I am discussing about the software development. अभी आप देखिएगा software development at the procurement management is the technology or the concept to safely handle your task, whether it is development, whether it is business, whether if you are going to work as a supplier. तो पहले से एक प्लान बना करके और उस अपने प्लान को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करना इज नोन एज द प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट. दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट.
प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट पूरा एक प्लान बनाते हैं, इनपुट क्या होंगे, व्हाट विल बी द पॉसिबल आउटपुट। तो जिस तरह से प्रोजेक्ट का एक प्लान होता है, ठीक है, तो उसी तरह से प्रोक्योरमेंट एक नाउ अ डेज अ टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन बिजनेस, whether it is development point of view as your industry, whether you develop good and effective information system for your client as per their requirement, or when you are going to provide services rather than your software development procedure. So sometime it is also known as project procurement management. Project procurement मैनेजमेंट। सो प्रोजेक्ट प्रोक्योरमेंट, देखिए स्क्रीन आ रही होगी, प्रोजेक्ट प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट। सो इंगेजिंग इन द सिस्टमैटिक प्रोसेस नेसेसरी टू परचेज और एक्वायर और डेवलप एंड सर्विसेज और वेदर रिजल्ट नीडेड from outside the project team. This is known as project procurement management, which comes into the procurement management. So procurement का मतलब एक systematic plan डिसाइड करना, प्लान बनाना, उसके अकॉर्डिंग इनपुट, उसके अकॉर्डिंग आउटपुट, सर्विसेज, डेवलपमेंट, सब कुछ according to that plan must be executed. Then it is known as procurement management. Procurement management का यही मतलब होता है, without following any development procedure or the plan, it will be harmful later part of the development procedure. Wait for a minute. Wait for a minute. स्क्रीन शो हो रही है, नहीं हो रही है? हाँ हाँ, कंटेंट सब आ रहा है बेटा, आ रहा है। थोड़ा सा दिक्कत हो रही है इस मोबाइल के साथ। Now it is visible. Now it is visible. So I am talking about the procurement management, and where our main
topic or the concern about the project procurement management, where the mainly basically we dealt about the project development procedure. जो हमारा मेन काम है वो project development procedure है. So project procurement management process. Project procurement management process comprises four important process. You can say that first one is plan procurement management. Second one, conduct procurement. Third one is control product procurement. And fourth one is close procurement. In later part and the subject, you will also learn about that whenever you are going to plan or start or the conduct the procurement procedure or whether any procedure, it must be graceful disconnection, graceful closure procedure. समझ रहे हैं? ग्रेसफुल क्लोजर प्रोसीजर भी होता है. जब भी कोई आप प्लान एग्जीक्यूट करते हैं, प्लान को कंडक्ट करते हैं, तो एक समय के बाद जब उसकी साइकिल एंड होती है, देन इट विल बी आल्सो ग्रेसफुल क्लोजर. व्हेनेवर यू आर गोइंग टू फेस द इंटरव्यू प्रोसीजर, तो आपने कहीं कहीं सुना होगा वेदर योर इंटरव्यू इज गुड और नॉट, बट एट द लास्ट टाइम वो एक मैसेज जरूर देते हैं कि वी विल गेट बैक टू यू, वी विल गेट बैक टू यू. इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कहते हैं उसी समय एट वंस रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करते हैं कि आपका इंटरव्यू सही नहीं हुआ है, आपको आता कुछ नहीं है, या आपको क्वेश्चन नहीं आता है, या आपको आंसर नहीं सही से पता है, या आपके कम्युनिकेशन स्किल्स इज नॉट गुड. वो सीधे बताते हैं वी विल गेट बैक टू यू. तो दिस इज नोन एज ग्रेसफुल डिसकनेक्शन, graceful closure of the procedure. This activity or the phrase is known in that term, whether it is good or bad. So closure procurement is also an important step. Plan procurement management, first one is. Second, conduct procurement, that is sometimes also known as procedure. फिर control activities या control procurement, and last में close procurement. These are the four project procurement management process. कई नोटिंग भी करते चले जाइए, हालांकि आई विल प्रोवाइड यू लिंक ऑफ दैट पर्टिकुलर पीपीटी. गाइडिंग प्रिंसिपल, फर्स्ट वन इज कॉन्ट्रैक्ट्स. जब आप कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन द टर्म ऑफ एसडीएलसी, व्हेन यू आर गोइंग टू मेक एक एसआरएस which is signed by the both, and both will be agree on a particular document that is known in our development area is known as software requirement specification, SRS, software requirement specification, and some other it is also known as contracts. So contracts are formal and legally binding between a buyer and a seller. ये legal binding होता है किसी भी buyer और seller के बीच. कॉन्ट्रैक्ट कैन बी सिंपल और कॉम्प्लेक्स. सिंपल का मतलब हो गया इट इज इजिली अंडरस्टैंडेबल, नो कंडीशन आर देयर, बट समटाइम इट इज आल्सो कॉम्प्लेक्स व्हेन द कंडीशंस वेदर इट इज पुट बाय द डेवलपर और द क्लाइंट. So contract can be simple or complex as per the requirement of the project or the timely delivery of the project or the cost. All requirements related to project and product या project से related सारी requirements should be specifically spelled out in the contract. So all the requirements should be clearly stated in the SRS. सब कुछ mention होता है delivery time तक और date भी. If you are going to pay a highly amount, a huge amount as per the requirement of the developer, then you will also expect that the developer should also provide
the module which will in phase wise, in time and on date. It included in the contract, it must be done. If included in the contract, it must be done. तभी आप उसको पे करते हैं. If not in the contract, does not have to be done. This is obvious. So all the things you want to do by your information system, or you expect that this particular information system must provide this type of facility, then it should be mentioned in that particular contract. ठीक है. फिर formal change control is the only way to add or remove item from the contract. जो हमने बताया ना, कंट्रोल प्रोसीजर, कंट्रोल प्रोक्योरमेंट या कंडक्ट में ये चीजें आ जाती हैं. फिर है चेंजेस मस्ट बी इन राइटिंग. आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट मेंटेनेंस प्रोसेस इज आल्सो डन, बट इट शुड बी आल्सो इन राइटिंग. और कोई भी मॉडिफिकेशन विल ऑलवेज वेलकम, but it should be in writing. And the costing of modification, if you feel that this is extra as per the contract or written in SRS, it will be charged by extra cost. Contract term and condition are designed to avoid and mitigate project risk. इसीलिए जो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म और कंडीशन इसीलिए डिजाइन की जाती है या लिखी जाती है कि किसी भी तरह की बाद में कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी या कहीं भी आप फ्रैक्शंस ना आए दोनों के बीच में, डेवलपर और यूजर के बीच में. नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट रूल्स. कॉन्ट्रैक्ट रूल्स, आई एम ऑल्सो parallelly writing the point which is very much important and which will going to highlight about this particular lecture. जो भी हम लोग के पॉइंट्स हैं वो हम साथ में लिखते भी चले जा रहे हैं कि आपको भी ये ध्यान रहे कि कौन कौन से पॉइंट हम लोग को फर्दर इसमें लिखने और किस हेड के अंदर ये पॉइंट्स आपके आ रहे हैं. ठीक है, इसलिए मैं साथ में नोट्स भी प्रिपेयर करता चला जा रहा हूं पैरेलली. सो देयर आर डिफरेंट रोल्स before the contract is made. Contract roles are, first one is contractor, one who enters into contract undertaking to do work for a company or corporation or individual, that is known as customer or the client, and the जो कि आपको सर्विस प्रोवाइड कराएगा, that is service provider, on a large scale at a certain price, or to furnish goods to another at a fixed or is a certain price. So price is determined in the SDLC or the software development procedure by the different model. तो अपने यहाँ जो मेन मॉडल यूज होता है that is known as COCOMO, COCOMO, Constructive Cost Estimation Model. कोकोमो, कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल. इस मॉडल के थ्रू इसके फर्दर 3 पार्ट होते हैं. बेसिक होता है वो एक फॉर्मूला, जो आपके बोएम थे सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उन्होंने एक फॉर्मूला इंट्रोड्यूस किया था, उनके थ्रू होता है. सेकेंड इंटरमीडिएट, उसमें कॉस्ट ड्राइवर्स, देयर आर 15 कॉस्ट ड्राइवर्स. दिस विल बी इंटीमेटेड और डिलीवर्ड इनटू द नेक्स्ट ईयर. 4th सेमेस्टर में ये पूरा सब्जेक्ट है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, उसमें पूरा ये अलग से मॉडल है, बट मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ. इंटरमीडिएट मॉडल में 15 कॉस्ट ड्राइवर्स आर देयर, पर्सनल, मशीन, सर्वर, ठीक है, और सॉफ्टवेयर, प्रोजेक्ट, उसके मॉड्यूल्स, इन सबके 15 कॉस्ट ड्राइवर्स होते हैं. इनके थ्रू उसकी कॉस्ट डिसाइड होती है. और थर्ड जो एम्बेडेड है या कंप्लीट कोकोमो मॉडल होता है, जिसमें कि पूरे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसीजर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है या सेग्रीगेट किया जाता है. दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज समटाइम्स 3-tier आर्किटेक्चर ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसीजर. फर्स्ट वन इज यूजर इंटरेक्टिव पेजेस, द पेजेस बाय विच यूजर इंटरैक्ट बाय देयर रिक्वायरमेंट. सेकेंड वन इज द डेटाबेस. Database is the repository in which all the processing is done and saved
kept for future use and different reports are generated by the repository or the database or the saved data. And third is business logics, the logic behind the user interactive page and the database are interact. वो बिजनेस लॉजिक्स भी साथ में वर्क होते हैं. दैट इज इट इज नोन एज 3-tier आर्किटेक्चर. सेकेंड होता है कॉन्ट्रैक्टर के पास सब कॉन्ट्रैक्टर. अ पर्सन और बिजनेस विच हैज अ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स एज इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर एंड नॉट एन एम्प्लॉय with a contractor to provide some portion of the work or service on a project which the contractor has agreed to perform. Means whenever we are going to develop any software, then there is a necessity, there may be possibility that necessity should be arise to provide network configuration or the establishment या डेटाबेस को एडमिनिस्ट्रेटर की एक जरूरत है. डेटाबेस को एडमिनिस्ट्रेशन करना है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की भी एक रिक्वायरमेंट है. और द सम पर्सन आर रिक्वायर्ड which works as a motivator. There may be, if you are work with a team, large team, there may be possibility कि मोटिवेटर आपकी टीम में हो, बट सम टाइम आप बाहर से भी लोगों को हायर करते हैं, तो ये भी हो सकता है. आई एम गिविंग सम कॉमन एग्जाम्पल. तो सब कॉन्ट्रैक्टर या आपको हार्डवेयर प्रोवाइडर, यानी इफ यू रिक्वायर्ड अ स्पेसिफिक सर्वर फॉर योर प्रोजेक्ट, अपने प्रोजेक्ट के लिए सॉफ्टवेयर के लिए स्पेसिफिक सर्वर की जरूरत है, तो हार्डवेयर जो सप्लायर है या जिसने उसका कॉन्ट्रैक्ट लिया है उससे भी आपको मिलना होगा, वो भी उसमें मेंशन होगा. ठीक है, मे बी वो थर्ड पर्सन के थ्रू या उसकी साइकिल दूसरे से बन करके जाए, बट वो भी कहीं ना कहीं से डायरेक्ट इनडायरेक्टली आपके यहाँ ऐड होता है. दैट इज समटाइम नोन एज सब कॉन्ट्रैक्टर. समझ रहे? जैसे आप सपोज करिए, सबसे कॉमन एग्जांपल है यहाँ, तो अभी आप जब डेवलप करेंगे तो आपको समझ में आएगा, बट आप कॉमन देख लीजिए, सभी लोग के घर में जो है घर बनता है, घर में कोई काम होता है तो पता चला पत्थर लगाने वाला कोई और है, बनाने वाला कोई और, कारपेंटर का कोई और काम कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का कोई और काम कर रहा है. मे बी कि अगर आपने किसी को एक पूरा कॉन्टेक्ट दे रखा है तो वो इनके साथ जुड़े हुए हैं, या आपने इंडिविजुअल भी इनको कॉन्टेक्ट रखा हुआ है, आपकी परमिशन से ये सब उसमें एज अ सब कॉन्ट्रैक्टर ऐड हो गए. कॉमन एग्जाम्पल है दिस इज. बाय द एक्वायरर ऑफ प्रोडक्ट सर्विसेज और रिजल्ट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन मीन्स द एक्चुअल क्लाइंट and the sellers external companies that enter into contractual agreement to provide component or services necessary for the project. Sellers, you can understand your development personnel, developer, contractor, project leader. Sellers यहां पे अपने टर्म की अगर बात करें तो हमारा जो डेवलपर है, जो आपके यहां इंप्लीमेंट करेगा, दैट इज नोन एज कॉन्ट्रैक्टर, सब कॉन्ट्रैक्टर, वेंडर, सर्विस प्रोवाइडर, और सिंपली यू कैन से दैट द सप्लायर. द पर्सन और द ऑर्गेनाइजेशन हैव डिफरेंट रोल्स एंड डेडिकेटेड टू डिफरेंट पर्सनल एसोसिएटेड एंटायर द डेवलपमेंट प्रोसीजर. नेक्स्ट कम टू द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट रोल इन प्रोक्योरमेंट. प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट और द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रोल इन प्रोक्योरमेंट दोनों ही एक ही टर्म है. सो नो द प्रोक्योरमेंट प्रोसेस, सीक सपोर्ट अर्ली फ्रॉम स्पेशलिस्ट, कॉन्ट्रैक्टिंग, परचेजिंग, लॉ एंड टेक्निकल डिसिप्लिन्स. This is also known as sometime project managers. This role is also dedicated because जब हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज डन बाय द प्रोजेक्ट मैनेजर और द लीडर. So the involvement should begin at the start of the procurement process. Understand contact term and conditions. ये सब उसके रोल होते हैं, क्योंकि वो बिगिन जहां से आपका शुरुआत हो रही है, ओरिजिन से वो एसोसिएट रहता है, जुड़ा रहता है. बल्कि ये कह सकते हैं कि उसी के मेन आपके ऑब्जर्वेशन या सुपरविजन में ये सारे रोल बनते हैं. आपकी जितने भी हम रोल या
रूल बता रहे हैं या जो भी कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं वो सब उसी के सुपरविजन में ही आपके सारे तय होते हैं, एग्रीमेंट बनता है एंड साइन बाय द बोथ क्लाइंट एंड द प्रोजेक्ट मैनेजर, द पर्सन हु इंट्रोड्यूस दैट पर्टिकुलर कंडीशन, and from your side the person who also mention their condition. So understand contract term and condition. Ensure the contract contains all project management requirement and scope for the product or service being procured. Identify risk and incorporate ways to avoid, mitigate, transfer to seller or share the potential risk within the contract. This is also done by the project manager. Fit the schedule for completion of procurement process into the schedule for the project. Be engaged during contract negotiation to the seller to a large extent. और सारे काम जो निगोशिएशन है वो सेलर का मतलब डेवलपर को बताता है, साथ ही साथ क्लाइंट को भी बताता है, दोनों के बीच में एक की रोल प्ले करता है, बिकॉज होल सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी इन द शोल्डर ऑफ दैट पर्टिकुलर पोस्ट, जो कि प्रोजेक्ट मैनेजर होता है। सब कुछ उसी के शोल्डर पे, सब कुछ उसी के कंधे पे आप समझ लीजिए सब काम होता है। सो नाउ we can understand the role of project manager or the project management by this example. Suppose you are the project manager for a new very visible and big income producer project. In your preliminary analysis you find out the following conditions or the observation. The project will have multiple interfaces to various system and hardware for internal and external customers. Multiple interfaces deals that you have a large and huge number of forms, user interactive pages, number of modules there, number of, जैसे हमने एक आपको ERP पैकेज का नाम दिया था, तो ERP comprises different areas into a single roof. वहां पे फाइनेंस का भी काम हो रहा है, HR का भी काम हो रहा है, ठीक है, और जो है उसका इन्वेंट्री का भी काम हो रहा है, डिफरेंट अकाउंटिंग का भी, फाइनेंशियल रिलेटेड भी है, सब कुछ एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर या सिस्टम के अंदर हो रहा है। दिस इज आल्सो नोन एज ERP। वहां पे आपका सप्लाई चेन मैनेजमेंट का भी काम हो रहा है, ठीक है, CRM प्रोडक्ट भी आपने उसमें इंट्रोड्यूस की, तो ये सब कुछ प्रोजेक्ट मैनेजर को ही डील करना पड़ता है। द प्रोजेक्ट इज अ डिस्क्रिशनरी प्रोजेक्ट एंड यू विल नीड सम हेल्प फ्रॉम अ टीम ऑफ फाइनेंशियल स्पेशलिस्ट विद इन योर ऑर्गेनाइजेशन। आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इफ यू मेंशन अकाउंटिंग और फाइनेंस सर्विस बाय योर प्रोजेक्ट, देन द पर्सनल हु इज, you can say that, expert about the working of organization related to financial services, वो भी इसमें इंक्लूड रहते हैं। और ये प्रोजेक्ट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इनको इंक्लूड करना, टीम में लाना। इन योर मीटिंग विद द फाइनेंशियल स्पेशलिस्ट मैनेजर यू फाइंड आउट दैट दे हैव नॉन डिस्क्रिशनरी प्रोजेक्ट that is number one on of their list of priorities. Then FRB, जो फाइनेंस रिलेटेड बेस्ड या प्रोजेक्ट है, was you can say that designated to the financial organization by the फेडरल रिजर्व बैंक, और द किसी भी रिजर्व बैंक के नॉर्म को फॉलो करते कि नहीं करते, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सारे रूल, ठीक है, वो फेडरल रिजर्व बैंक प्रोजेक्ट या कोई भी रिजर्व बैंक, अपने यहाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये तो कॉमन एक एग्जांपल ले लिया है, तो उसको उन्होंने रेफर किया। अपने यहाँ RBI का सारा मेन रोल प्ले होता है, तो उसके अकॉर्डिंग फाइनेंस सिस्टम या अकाउंटिंग सिस्टम वर्क करता है नहीं करता है, दिस इज आल्सो डिसाइडेड बाय द प्रोजेक्ट मैनेजर एंड द फाइनेंशियल स्पेशलिस्ट मैनेजर। अगर नहीं होता है, दोनों के कहीं ना कहीं जो आप कह सकते हैं राइट्स में कॉन्फ्लिक्ट होता है, देन दिस विल बी रिजॉल्व बाय अ जॉइंट मीटिंग बोथ ऑफ देम।
तो इसमें दोनों तरफ के लोग जो है अपना रोल प्ले करते हैं। मैंने कई बार आप सबको रोल बताया भी था कि किस तरह से नेगोशिएशन होता है। जैसे मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल जो हमेशा मेरा फिट होता है एग्जाम्पल, कि कैसे आपको रेट बदल के लाने। डिस्काउंटिंग वाला एक एग्जाम्पल हमेशा देता हूँ कि डिस्काउंट आपको कम्युलेटिव अमाउंट में देना है, परसेंटेज में देना है, या पूरे बिल में एक साथ दे देना है। ठीक है, परसेंटेज में देना है कि नहीं देना है। तो दीज विल बी डन बाय द नेगोशिएशन ऑफ बोथ योर प्रोजेक्ट मैनेजर एंड द अकाउंट और फाइनेंशियल पर्सनल एक्सपर्ट इनटू दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। In the meeting with the financial specialist, the manager told you the following: they currently have 10% staff, means their personnel is only 10, approximately 200 hours a week work effort for the, जो भी आपका फेडरल रिजर्व बैंक है या अपना आरबीआई है, प्रोजेक्ट जो भी बन रहा है आपका, द एफआरबी प्रोजेक्ट मस्ट बी कंप्लीटेड इन 4 months। ये कॉमन जो है जो मीटिंग है, ये एक्सरसाइज हो रही है फाइनेंशियल स्पेशलिस्ट के साथ, वो दोनों के बीच की है बात। देयर स्टाफ इज वर्किंग अप्रोक्सीमेटली 100 hours a week ऑन मेंटेनेंस, जिसमें पोस्टिंग, लेजर की पोस्टिंग, एंट्रीज, अकाउंटिंग मेंटेन करना, बैलेंस शीट बनाना, ये सब काम रहता है। ये दिस इज एग्जाम्पल। मेंटेनेंस ऑफ करंट सिस्टम टेक प्रायोरिटी ओवर एवरीथिंग। सबसे इंपॉर्टेंट है कि मेंटेनेंस को आप ज्यादा ध्यान दीजिए, बाकी सबकी किनारे कर दीजिए या साइड बाय साइड चलिए, बट प्रायोरिटी उनकी मेंटेनेंस ज्यादा है। द नंबर ऑफ आवर्स अवेलेबल विल वेरी फ्रॉम वीक टू वीक, दिस इज ए कंडीशन। कोई किसी दिन हॉलीडे पड़ गया है, किसी दिन कोई काम है, तो वीक टू वीक वो वर्किंग आवर्स भी आपके घटते बढ़ते रह सकते हैं। द मैनेजर ऑफ द फाइनेंशियल सपोर्ट ग्रुप सेज ऑफ द टॉप ऑफ माई हेड एंड द लिमिटेड इंफॉर्मेशन यू हैव सिमिलर टाइप्स ऑफ projects. So this type statement may become during the meeting or the discussion. This is example. So exercise, अगर आप बात करें conclusion में, is it better to have the in-house people do it or send it outside? Means जब ये बात हो जाती तो एक दो ऑब्जर्वेशन जो कॉमन निकल के आते हैं कि क्या ये सारा काम जो है वो हम खुद से करें, क्योंकि आपका अकाउंटिंग का अगर बैकग्राउंड नहीं है तो आप बाहर के लोगों को या थर्ड पर्सन को, जिसको हम सब कॉन्ट्रैक्टर का नाम दे रहे हैं, वो भी इसमें आ सकता है, उसकी एंट्री भी हो सकती है। बाहर का इसलिए कहते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन यानी जो क्लाइंट है उसके साइड का ना हो करके, या डेवलपमेंट साइड आपके यहाँ, वहां पे भी कोई ऐसा एक्सपर्ट नहीं है जो इन फाइनेंस की जो डीप स्टडी है उसको नहीं पता है, तो फिर थर्ड पर्सनल को आप इन्वॉल्व कर सकते हैं। और वेदर यू डिसाइड टू सीक अ कॉन्टैक्ट फ्रॉम एन आउटसाइडर वेंडर, व्हाट आइटम डू यू वांट टू प्लेस इन दिस कॉन्ट्रैक्ट, दिस ऑप्शन विल बी आल्सो विद यू। दिस इज अ कॉमन एग्जांपल। दिस इज द प्लान प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट, जो हम लोग प्लान करते हैं, जैसे प्रोजेक्ट प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट है, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस ग्रुप जो आपका मेन है, दिस कंटेन इनिशिएटिंग, प्लानिंग में मैंने प्लान प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्सिक्यूटिंग, कंडक्ट प्रोक्योरमेंट, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, दैट इज कंट्रोल प्रोक्योरमेंट, एंड क्लोजिंग। और उसके बाद ग्रेसफुल क्लोजर। प्लान प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट, तो ये सारे स्टेप, अगर एक आपने एग्जाम्पल लिया है नॉलेज एरिया का, तो ये सारे स्टेप जो प्लान प्रोसेस हमारे में है या प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट के जो प्रोसेस है उसी का ये पार्ट है। होती लाइफ साइकिल में ये इनिशिएशन, प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग, मॉनिटरिंग एंड क्लोजिंग। तो इनिशिएशन आपका हो ही गया है, व्हेनेवर यू आर ईगर टू डू विद दैट पर्टिकुलर टास्क थ्रू अ इंफॉर्मेशन सिस्टम और द सॉफ्टवेयर सोल्यूशन सिस्टम, then your initiation already started. Planning वो पूरा आपने देख ही लिया अभी तक, जितना भी हमने बात की है, that is the part of planning, and now come to the conduction। और जो बचे हुए monitoring and control, this is control procurement and the closure। जब बात खत्म हो जाती है, डिलीवरी हो जाती है, सारी मेंटेनेंस खत्म हो जाती है, सिर्फ सपोर्ट चलता रहता है, then graceful closure of that particular development।
Now come to detail about the plant procurement management. First one, the definition. The process of documenting project procurement decisions, specifying the approach and identifying potential sellers. Plant procurement management की definition है the process of documenting project procurement decision, specifying the approach and identifying potential sellers. अब इनपुट्स इसमें देखिए क्या क्या है. कंफर्टेबल है पढ़ने में, पढ़ने में कंफर्टेबल है, पढ़ने में आ रहा है. मैं अभी भी मैं प्रोनाउंसिएशन भी करूंगा, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए पढ़ने में आ रहा है. देखिए पहले तो नंबर इसमें 3 आपके जो है मेन इसमें टूल्स है. इनपुट, टूल्स एंड टेक्निक्स एंड आउटपुट. इनपुट में क्या है? सबसे पहले प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन. ऑल थिंग्स आर द सेम विच ऑलरेडी डिस्कस्ड इन SDLC. वो हम लोग ने पढ़ा हुआ था, लेकिन ये स्पेसिफिक प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट या इस सॉफ्टवेयर को ध्यान में रख करके ही हम लोग डिटेल स्टडी कर रहे हैं. सो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन, रिस्क रजिस्टर, जो भी रिस्क है उनको एनालाइज करना, एक्टिविटी रिसोर्स रिक्वायरमेंट, प्रोजेक्ट शेड्यूल. शेड्यूल हमने आपको बताया कि जब भी आपका कोई भी प्लान बनता है तो उसका साथ साथ शेड्यूल भी बनता है कि इस पर्टिकुलर शेड्यूल में इस पर्टिकुलर स्लॉट के अंदर अंदर आपको अपना टास्क कंप्लीट कर लेना है. एक्टिविटी कॉस्ट एस्टिमेट्स, स्टेक होल्डर रजिस्टर. स्टेक होल्डर द यूजर. स्टेक होल्डर का मतलब जो क्लेम करते हैं, जो इफेक्टिव यूजर है, जो कि उस सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे, बेनिफिटेड होंगे बाय दैट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर. एंटरप्राइज एनवायरमेंटल फैक्टर्स. दिस कम्स इनटू द feasibility study. Enterprise environmental factors, this comes into the feasibility study. And organizational process assets. Process assets का मतलब if you are following the norms already which is expected by the developer. जब लगता है डेवलपर को कि ये आप काम बिल्कुल सिस्टमैटिक कर रहे हैं, प्रोसीजर जिस तरह से होना चाहिए वही प्रोसीजर आप फॉलो कर रहे हैं, then it is easy to your developer to implement by their solution or the software techniques. बट अगर आप कभी कभी क्या होता है, ज्यादातर जहां पे हम लोग पहली बार इंट्रोड्यूस करते हैं वो मैन मेड सॉफ्टवेयर या मैन मेड, जैसे एक्सेल शीट पे काम कर रहे हैं, वर्ड पे कोई डॉक्यूमेंट काम कर रहा है, तो वो प्रोसीजर को फॉलो नहीं करते हैं. तो उस केस में पहले जो टास्क हमारा ये होता है कि उनको ये बताना, उनको पहले एक्चुअल प्रोसेस से अवेयर कराना. ये थोड़ा सा आपका टास्क बढ़ जाता है कि आप उनको बताएंगे कि यू आर डूइंग रॉन्ग प्रैक्टिस. जब भी आप कोई बुक कीपिंग कर रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, किसी का चालान बना रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट एंटर कर रहे हैं, तो ये जो आप प्रोसेस कर रहे हैं, दीज आर अगेंस्ट द बेसिक ऑफ द प्रोसेसिंग. तो वो भी समझाने में आपको टाइम लग जाएगा. और कहीं कहीं पे इट इज गुड एसेट्स, दैट इट इज नोन एज एसेट्स. गुड एसेट फॉर यू दैट the company or the organization or your client is already act as per the rule. Next, that tools or technique, make or buy analysis, expert judgment, market research, meeting. All things are discussed already previous in different concepts. ये सब हम लोग ने पहले से बात कर ली. एक्सपर्ट जजमेंट क्या होता है, मार्केट रिसर्च क्या होता है, मीटिंग्स हम लोग करते रहते हैं. ठीक. नेक्स्ट कम टू द आउटपुट. प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट प्लान, प्रोक्योरमेंट स्टेटमेंट ऑफ वर्क एक तैयार हो जाता है. प्रोक्योरमेंट डॉक्यूमेंट ऑलरेडी प्रिपेयर्ड. आफ्टर डूइंग दिस, सोर्स सिलेक्शन क्राइटेरिया इज डिसाइडेड. मेक और बाय डिसीजंस, क्या बनाना है, कहां से लेना है, क्या रिसोर्सेस आपको मिल जाएंगे, कौन से बाहर से लेने पड़ेंगे. चेंज रिक्वेस्ट इफ देयर आर एनी पॉसिबिलिटी. कभी कभी क्या होता है कि देयर इज सम कंडीशन और द सिचुएशन व्हेन यूजर इज नॉट श्योर एट द टाइम ऑफ इनिशिएशन और द प्लानिंग और द
initial investigation, whenever your analyst try to seek या जो है कोशिश करता है कि यूजर की रिक्वायरमेंट को ढूंढने की, यूजर आर नॉट श्योर अबाउट देयर रिक्वायरमेंट and tell the analyst or the recognition personnel कि I will tell you later. Whenever development procedure is going on, I will intimate at that particular time. वो खुद अपने लिए टाइम चाह रहा है श्योर होने के लिए कि इस रिक्वायरमेंट को या इस टास्क को इसमें इस तरह से इंप्लीमेंट करना है या उसको चेंज करना है, समझ रहे हैं? तो चेंज रिक्वेस्ट इज आल्सो मेंशन एंड देयर परसेंटेज, जो कितना हो सकता है, कितना चेंज कर सकते हैं, इज आल्सो मेंशन इन द SRS कि इतने नंबर ऑफ चेंजेस के लिए आप तैयार रहिए, 10%, 20% चेंजेस विल बी अकर एट द डेवलपमेंट टाइम एंड दिस विल बी नॉट कॉस्टेड, उसकी कॉस्ट नहीं होगी, वो कॉस्ट इसमें इंक्लूड ना हो अलग से, क्योंकि ऑलरेडी टोल्ड यू। एंड प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट अपडेट्स, जो भी चेंज रिक्वेस्ट होंगे, जो भी फर्दर डिसीजन लिए जाएंगे, उन सब का भी डॉक्यूमेंट अपडेट होता चला जाएगा। इसी टेबल का नाम कुछ और था, नाउ टेबल्स नेम इज चेंज बिकॉज देयर वर्किंग इज चेंज, देयर कॉलम नेम इज चेंज, की क्राइटेरिया कांस्टेंट इज चेंज, द डॉक्यूमेंट विल आल्सो चेंज। बिल्कुल वैसे ही है कि जब भी हम कोई चीज आपको बताते हैं, कोई करेक्शन करते हैं, सपोज करिए आप अपने आप प्रैक्टिकल करते हैं, उसमें कुछ एरर आ जाती है तो हम आपको बताते हैं नहीं इसमें ये नहीं, इसमें इस तरह से लिखिए, इसके कंटेंट में ये ऐड कर दीजिए, यहाँ पे आपने कमेंट नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे ये आउटपुट सही नहीं लिख करके आया है, आउटपुट 1 से ज्यादा बढ़ा दीजिए। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो उसमें आप जैसे स्टैक का प्रोग्राम है तो आप इसमें पॉप और पुश और डिस्प्ले का भी आउटपुट जरूर लिख दीजिए, सिर्फ ये ना हो एक दो एलिमेंट ज्यादा बढ़ा दिए, तो उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन विल बी आल्सो चेंज। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द प्लान प्रोक्योरमेंट, जो भी आपका प्लान है वो आपका यहाँ पे हो जाता है, और बाकी का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे कंटिन्यू करेंगे। अभी आप अटेंडेंस लिख दीजिए सब लोग। दिस विल बी कंप्लीटेड, दिस टॉपिक विल बी कंप्लीटेड इनटू नेक्स्ट लेक्चर, या अगर जरूरत पड़ेगी तो और एक बार एक्सप्लेन कर देंगे। एंड डोंट लीव द क्लास, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सब हम लोग को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना है इन द 4th सेमेस्टर। ठीक है, इंफॉर्मेशन सिस्टम या मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इज सो इंपॉर्टेंट टॉपिक। आस्क योर सीनियर्स, प्रोजेक्ट इज डेवलप्ड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ MIS। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज द वे और द टेक्निक और द बेसिक्स हाउ इट इज इम्प्लीमेंटेड and what should be implemented, that is tell into this particular subject, management information system। information system में क्या होगा? I already told you 90% of the software or the product is based on information system or the management information system, MIS। even MIS is so popular subject that government different saving scheme is also named that particular on the basis of that particular subject। मंथली इन्वेस्टमेंट स्कीम MIS चलता है, समझ रहे? पोस्ट ऑफिस पे एक स्कीम चलती है,